I am your host, Shrim bin Mohammed Rafi, and here is your YouTube channel, Zamir Universal. Who created the world's problem that this century has been facing? And I'll show you here that it is the Great Britain, and why the compensations for dealing the problems like Kashmir, like Rohingya or Tibet, like Hong Kong, like Palestine, and creating a state of Israel, like many problems in the African continent and even in some parts of Australia and New Zealand between the indigenous people and the people who invaded that and went there as immigrants and then became these citizens. In fact, in all these four big countries of Canada, America, Australia and New Zealand, the land does not belong to the people, especially the whites who are there. Because the Canadian Indians, the American Indians, and the Australian Maoris and New Zealander Maoris, they are the one who owned that land, and God made that land for them. And the people who went there as immigrants seeking for refuge, they went and they killed them, and they did all sorts of atrocities with them and human rights violations. And later on, when they became rich and filthy rich, they started to talk about human rights and their violations. And in fact, these are the people who did it. So I'll start from how when Hitler or the Germany had to pay, and in the just fabricated Holocaust figures. Maybe there were few Jews who were killed, and in every war there are some killed, but it wasn't just the Jews who were killed. The people who are homosexual, they were killed. People who had some sort of disability, they were killed. And there were many, actually, in fact, Russians and Germans killed, and the Christians killed. And you only talk about that because these people are most dishonest. They're the people who have left all the ills. And if you put together the British as well as put the Jews together, and I think 99% of the ills, which were later taken over by America and his allies, and they are the one who spread the filth, and they were the Satan on this planet to let most of the human being decent who wanted to live in peace, to fight amongst each other. So these such satanic actions are taken by, like Narendra Modi, the extremist Hindu, who has destroyed the Indian constitution. And that's the first thing they do, is that anything man-made which has been collectively agreed upon, they violate that. Same thing is happening in Pakistan and in India too. And when they, first of all, look at the majority Muslim populations, all those, those like Hyderabad, like Junagadh, like Bhopal, they were all, just forcibly occupied, like Kashmir, the Jammu and Ladakh, all those areas, and then Manipur, and you look at that, and they all want to separate. They don't want to live with India, and they don't want to live with China. There are many people who would not like to be a part of the Chinese, but the British left that problem. And similarly, Narendra Modi, who is now creating this chaos on this earth, and you can see that how he is selling his own assets, he is killing his own people. Exactly the same thing is Netanyahu doing. And in Pakistan too, in spite of the fact that there was partition and the two countries came into existence, but you can see that what misfortune and cursed this nation has been, that it's always, most of the time, the people who have occupied this country and violated the constitution have been the armed forces. It is not their business to poke their nose into their affairs, but they are everywhere, from property dealing to the cornflakes, to the bike, to the fertilizer, you name it, and they are there, banking, and now corporate, agriculture. They want to occupy the whole country, and this is a state within the state. And unless these people voluntarily go, or there is an uprising from within, whether that is according to the constitution depends upon how strong is the
court or the justice in that there, or there's the International Court or the United Nations. If these institutions have no teeth and they have violated, have they broken, and most of the time they manage to do it. So when they have done it, they've done it in India, they've done it in Pakistan, they've done it in China, they've done it in the United States, every country which violates this. Russia. So, you look at the word might is right has been adopted, I would think, the creation of this word. So I think with this little thing which I'm going to put with different problems in the word, you will find that the preamble will be which I'm dictating and I'm talking about to you now. All problems in the world go back to the British. That's true in Pakistan, India. That's true in China. That's true throughout the Middle East. That's true here in Cyprus, because they were the most powerful empire for 200 years, and they left behind conflicts everywhere. The disaster taking place in Palestine right now, one of the reasons is that between 1915 and 1917, the British promised the same territory to 3 different groups. So first, in the McMahon communications, the British promised it to the Arabs. You fight with us against the Turks, it's yours. Then they negotiated the Sykes-Picot Treaty to say to the French, it's yours. Then in the Balfour Declaration in 1917, they said it's a Jewish homeland. So the British promised 3 times land that wasn't even theirs. And they got a lot of nerve as far as I'm concerned. And now you need to disentangle all of this. But this is where the problems originate. स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। भारत और पाकिस्तान पूरी दुनिया में खबर बनाए हुए हैं। पूरी दुनिया की जो टॉप 3 हेडलाइंस हैं उनमें भारत पाकिस्तान लगातार 1 हफ्ते से छाए हुए हैं। 3 दिन जो जंग का पूरा माहौल था, पूरी दुनिया उससे चिंतित है। उसके बाद अब सीज फायर को लेकर तमाम तरह के सवाल हो रहे हैं। अगर घरेलू स्तर पर हम देखें तो इस पूरी सीज फायर को लेकर जिन नरेंद्र मोदी को उस योद्धा के तौर पर देखा जा रहा था जो पाकिस्तान को हमेशा के लिए तबाह कर देगा, और एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा प्रधानमंत्री जो कि इंदिरा गांधी के बाद आया है पाकिस्तान को 4 हिस्सों में बांटने के लिए, खासकर उनका जो समर्थन समूह है वो बात कर रहा था कि पूरी तरीके से तबाह कर दीजिए, पूरी तरीके से गजा बना दीजिए, फिलिस्तीन बना दीजिए। इस तरह की मांगे हो रही थी। 3 दिन जो संकट पूरा चला, यानी कि भारत ने जब हमला किया आतंकवादी ठिकानों पर, उसके बाद पाकिस्तान की जो जवाबी कार्रवाई हुई, फिर हमारी जो जवाबी कार्रवाई हुई, उसके बाद अचानक डोनाल्ड ट्रंप का एक ट्वीट आता है कि दोनों देशों के बीच हमने इस जो सीज फायर थी इसको दोनों देशों को मना लिया है। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि इससे पहली बात तो घरेलू राजनीति पे तो असर पड़ेगा ही, जो पड़ेगा नरेंद्र मोदी का समर्थन समूह, लेकिन जो यहाँ पर सबसे बड़े सवाल उठ रहे हैं विदेश नीति को लेकर, सुरक्षा के जो मुद्दे हैं उनको लेकर, सबसे पहले विदेश नीति को लेकर कि भारत और पाकिस्तान के बीच, और साथ ही इसमें अब चीन और पाकिस्तान, चीन और यूनाइटेड स्टेट्स, ये 4 जो देश नजर आ रहे हैं अलग अलग, इनके रिश्तों पे क्या असर पड़ेगा। दूसरे, जिस आतंकवाद को लेकर हमने बाकायदा एक जंग छेड़ी, अब वो उस आतंकवाद को लेकर क्या चिंताएं हमारी दूर हो गई हैं। इसी तरह के अपने डिफेंसेस में जाती हैं, वो होता है, और उसके बाद जंग होती है। जंग का मतलब ये होता है कि दोनों तरफ से जितनी दोनों के पास क्षमता है मिलिट्री, वो पूरी आनी चाहिए, उसको जंग कहते हैं। ये जंग नहीं थी, ये क्राइसिस सिचुएशन थी। आप ये कह रहे हैं ये जंग नहीं थी, तो पहले अब ये मान लेते हैं क्राइसिस, चलिए संकट था। भारत ने भी बार बार बड़े नपे तुले शब्दों में, भारत के विदेश मंत्रालय ने भी जंग का कभी नाम नहीं लिया। उन्होंने कभी नहीं कहा कि हम युद्ध कर रहे हैं, उन्होंने सिर्फ ये कहा कि हम आतंकवादी ठिकानों पर हमला कर रहे हैं, हम आतंकवादियों को सबक सिखाना चाहते हैं ताकि आतंकवाद से जो भारत लगातार पीड़ित रहा है उससे अपने नागरिकों को बचाया जा सके। लेकिन अब ये इसी दौरान ये सीज फायर का ऐलान हो जाता है। तो अब आप मुझे ये बताइए कि जब टीवी चैनल्स जो नरेंद्र मोदी की सरकार के जरिए समर्थित हैं, दोनों एक दूसरे का समर्थन करते हैं, उन्होंने झूठी खबरें चलाई कि कराची पोर्ट तबाह कर दिया, इस्लामाबाद पे हमला कर दिया। आम आदमी की, आप ये सोचिए, जो आशा थी वो ये थी कि अब हमेशा के लिए आतंकवाद की जड़ खत्म हो जाएगी, पाकिस्तान को भारत हमेशा के लिए सबक सिखा देगा, दोबारा हमारी तरफ देखेगा नहीं। क्या हम इस जंग से, या जो भी आप जिसे संकट कह रहे हैं, हम वो हासिल कर पाए? जी, हम कुछ भी हासिल नहीं कर पाए हैं। और हुआ क्या है, जो हमारी स्टैंडिंग थी, इंटरनेशनल स्टैंडिंग थी, मेरी असेसमेंट में वो भी गिर गई है। और उसका कारण ये है,
पूरी दुनिया देख रही है कि हमने क्या अपनी मिलिट्री ताकत दिखाई एक क्राइसिस सिचुएशन के अंदर। तो देखिए, जब आप इस्तेमाल करते हैं अपनी एयर पावर, ये मैं पहले भी बोलता रहा हूं कि बालाकोट में इस्तेमाल करना 2019 में गलत था। तो उस बार जो था वो तैयार नहीं थे, क्योंकि उन्हें पता ही ना था आप ये कर रहे हैं, हमने कभी किया ही नहीं था पहले। इस बार वो तैयार बैठे हुए थे। तो ये आपने एक पहली बात तो ये है, अगर आप जा रहे हैं दुश्मन के एरिया के अंदर, आपके पास मिलिट्री ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। अब वो बार बार ये बोल रहे हैं कि हमारा ऑब्जेक्टिव था, वो मिलिट्री वाले बोल रहे हैं। अभी देखिए, कल जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, 3 सीनियर ऑफिसर्स आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के बैठे हैं और वो बार बार बोल रहे हैं, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो ये कह रहे हैं कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव था वो सिर्फ ये था कि आतंकवादी के जो कैंप है उनको तोड़े, और हम बिल्कुल संयम इस्तेमाल करना चाहते हैं। अरे भैया, अगर जंग है, अगर आप जा रहे हैं उधर, पहली बात तो मिलिट्री आपका ऑब्जेक्ट क्या है? कैंप तो मिलिट्री ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता। आपको मिलिट्री टारगेटिंग करनी है, वो आपने की नहीं। ऊपर से आप ये बोल रहे हैं कि हम हर बार उनको बोल रहे हैं कि हम अपनी तरफ से संयम कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आप लड़ाई करना ही नहीं चाहते। उसके बाद देखिए क्या हुआ, 6 और 7 की रात को जो भी कुछ हुआ, 7 की सुबह ही पाकिस्तान ने अपने एक सीनियर अफसर को, पाकिस्तान एयरफोर्स के जो उनका नंबर 3 अफसर है, एयर चीफ मार्शल औरंगजेब अहमद को बुलाया, जिसने एक इंटरनेशनल ब्रीफिंग दी, जिसमें बताया उसने मैप लगा के कि देखिए हमने 5 इनके जो फाइटर जेट्स है उनको गिरा दिया है। अब कल जब पूछा गया, पहली बार जब आए ये लोग, जो हमारे डायरेक्टर जनरल एयर ऑपरेशंस है, एयर मार्शल भारती, इनसे ये सवाल पूछा एक जर्नलिस्ट ने हिंदू के कि साहब ये जो खबर आ रही है क्या आप ये ठीक है कि नहीं है? तो उन्होंने कहा कि देखिए साहब, जंग के अंदर तो लॉसेस होते ही हैं, हमारे पायलट सेफ आ गए हैं, और फिर बोलते हैं कि अभी जो है ऑपरेशन सिंदूर जो है वो चल रहा है। अरे देखिए साहब, अभी एक क्राइसिस है, अगर आप ये नहीं कबूलेंगे या अपना एक्सप्लेनेशन नहीं देंगे तो दूसरी साइड की जो क्लेम होते हैं, जो वो दावा कर रहे हैं, उसको दुनिया मानती है, और वही हुआ है। पुत्री ने एक भी बयान नहीं दिया है ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर। इतने दिन हो गए हैं, 6-7 की रात को शुरू हुआ था, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई। तो मुझे बताइए, चलिए मान लेते हैं एक दफा को जनता नाराज है, क्योंकि टीवी चैनल्स ने खासकर जो पूरा उन्माद फैलाया युद्ध का, उसके बाद लोगों की उम्मीदें भी बढ़ गई। और आप जानते हैं भारत में एक तबका कम से कम ऐसा है, खून खराबे को पता नहीं क्यों, भारत का ये इतिहास है या क्या बात है, समाजशास्त्री इस बात को बताएं कि क्यों युद्ध का को लेकर इतना प्रेम है, या ब्लड शेड को लेकर कम से कम एक तबका ऐसा है जरूर जो चाहता था कि युद्ध होना चाहिए। तो ये तो अच्छा काम किया ना मोदी सरकार ने। मैं कह रही हूँ कि युद्ध बंदी हो गई, इस तरफ और उस तरफ दोनों तरफ जाने नहीं जाएंगी, हथियारों का नुकसान नहीं होगा, फौजियों की जाने नहीं जाएंगी, तो अच्छी बात है। तो नहीं, मैं आपका सवाल नहीं समझा, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल यह है कि क्या हमें डिप्लोमेटिक स्तर को एक तरफ थोड़ा साइड किनारे करके, अगर हम दो एक नागरिकों की तरह सोचें, तो मैं कहूंगी तो अच्छी ही बात है ना कि सीज फायर हो गया। देखिए, एक बात जो हम लोग नहीं समझ रहे हैं, जो हिंदुस्तान की सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट को 7 तारीख की सुबह समझ में आई है, वो ये है कि जो नुकसान जो वो क्लेम कर रहे हैं, दावा कर रहे हैं, वो चाइनीज एयरक्राफ्ट से हुआ, J-10। जो वो क्लेम कर रहे हैं मिसाइल PL-15, वो चाइनीज मिसाइल थी। कहने का मतलब ये है, यहां अचानक एक जागृति हुई, जो कि इनको पता होना चाहिए था। ये हमारी इतनी सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट है, हम इतना पैसा खर्चते हैं, इनको पता होना चाहिए कि आप पाकिस्तान से नहीं लड़ रहे हैं, आप पाकिस्तान के साथ चीन भी शामिल है। वो दूसरी बात है, चीन जो है वो जंग में हिस्सा नहीं ले रहा है, पर अपनी पूरी काबिलियत पाकिस्तान को दे रहा है। ये असेसमेंट हमारी गलत थी। तो अमेरिकन का ताल्लुक है, ये अमेरिकन को अब क्या मिला मुझे मालूम नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है, दोनों साइड जंग नहीं चाहते थे, इसमें कोई शक नहीं है, कोई नहीं चाहता। पर ये मान लेना कि हम जाके उनको अंदर से घुस के मार देंगे और वो चुप बैठे रहेंगे, तो ये तो गलत बात है ना। क्योंकि देखिए उसका कारण क्या है, 34 साल से उनका प्रॉक्सी वॉर चल रहा है, 34 साल से, 1991 से। अगर आप में ताकत होती, आप खुद सोचिएगा, आपके व्यूअर्स सोचे, अगर हम में ताकत होती तो बंद ना कर देते ये। तो हमें अपनी क्षमता बढ़ानी चाहिए थी। ये देखिए, आपने, ठीक है वो आपकी सोच है, आप सरकार है, आप जो भी कुछ करिए, पर ऐसा इसमें क्या होता है कि इंटरनेशनल स्टैंडिंग जो होती है वो अच्छी नहीं लगती हम सबके लिए। हम सब हिंदुस्तानी है, हमें अच्छा नहीं लगता। लेकिन मैं सवाल जो पूछने जा रही हूँ इसके 2 हिस्से हैं।
पहला ये है कि क्या पहले भारत में कभी ऐसा हुआ कि जाके रावलपिंडी और अंदरूनी इलाकों में जाके आतंकवादियों के ठिकानों पर हमले किए, हमने बाकायदा देखा कि उनके अंतिम संस्कार हो रहे थे, यानी इसका मतलब आतंकवादी मारे गए, उनकी हमने लिस्ट भी देखी कि ये आतंकवादी मारे गए, इन आतंकवादी संगठनों से थे वो। तो पहली बात तो ये है कि ये पहले कभी नहीं हुआ, तो क्या इसको एक सफलता के तौर पर नहीं देखा जाएगा? पहले इसका जवाब दीजिए, फिर दूसरा मैं सवाल पूछती हूँ। देखिए, आतंकवादी क्या है? एक मर जाएगा 10 वो और खड़े कर देंगे। आतंकवादी क्या है? हम इतने आतंकवादी मार रहे हैं, हमारे सिक्योरिटी पर्सन 34 साल से मरे हैं, ये वो अफसर मरे हैं, वो जवान मरे हैं जिनका घर है, बाहर है, सब दोस्त हैं, भाई है, रिश्तेदार हैं, बच्चे हैं। उनका आतंकवादी का क्या है? वो 50 और खड़ा कर देंगे। हम में अगर क्षमता है तो हमको जो आतंकवादी बनाते हैं, जो पाकिस्तान मिलिट्री है, उसके साथ लड़ाई करने की अगर हम में क्षमता है तो वो बंद कर देंगे। ये सब सीधी सी बात है। तो यही तो करना चाहती थी भारत की सरकार, जिससे तो ये पहले गलत युद्ध विराम जो हमारे ऊपर थोप दिया गया। ना 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 ना, सुनिए, ये जो एयरफोर्स का इस्तेमाल होता है, ये एक एस्केलेटरी इस्तेमाल होता है, लड़ाई होने वाली है तब होता है। 2019 में क्या हुआ जब हमने बालाकोट किया? वो पहली बार मोदी सरकार ने, कभी किसी सरकार ने एयरफोर्स का इस्तेमाल नहीं किया था। तो वो जो थे वो उसमें रह गए, उनको नहीं पता चला, पर अगले दिन उन्होंने अटैक किया, उन्होंने ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट किया। मैं उसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता। तो हमारी बहुत सारी एयरफोर्स की जो कमजोरियां थी वो दिखी। अब हमको उससे सबक सीखना चाहिए था कि साहब ये चलता नहीं है, ये सब चीज की मैं वहां आतंकवादी मारने जा रहा हूं, आप पहले अपनी ताकत बनाइए, और आपके पास ताकत है तो आपको मारने की जरूरत ही नहीं है, वो वैसे ही बंद हो जाएगा। तो इस बार हमने यही किया। इस बार तो ये हो गई प्रॉब्लम कि एक तो वो तैयार बैठे थे कि ऐसा कुछ करेंगे ये लोग, दूसरा जो हम बिल्कुल बेखबर है कि 2019 के बाद हमने इन दोनों मुल्कों को एक साथ जोड़ दिया है। तो पाकिस्तान से तो आप लड़ाई कर ही नहीं रहे थे। तो अब ये देखिए, इन बातों को, ये आतंकवादी की बात नहीं है। आतंकवादी अब यहां भी मार रहे हैं, अब वहां भी। आप सिर्फ दिखाना चाहते थे कि हम ताकतवर हैं, तो उसने रिस्पॉन्स दे दिया आपको। तो अब मेरा अगला सवाल आपसे यही होने जा रहा है, आप ये कह रहे हैं कि आतंकवादी 10 मर गए, 100 और आ जाएंगे, क्योंकि अगर पाकिस्तान आतंकवाद को एक स्टेट पॉलिसी के तौर पर, एक राज्य की नीति के तौर पर इस्तेमाल करता है कि भाई हम आपको फौजी नहीं भेज रहे हैं, लेकिन आतंकवादियों के जरिए हम परोक्ष रूप से, इनडायरेक्टली आपके साथ जंग हम छिड़ी हुई है, तो भारत सरकार के पास भी, जो कि एक लोकतंत्र है, हर तरह के सवाल यहाँ उठते हैं, विपक्ष है, पत्रकार है, सिविल सोसाइटी है, हर तरह की जवाबदेही है। पाकिस्तान को अगर देखें तो कोई इतना अच्छा लोकतंत्र नहीं है, वहां जो भी सेना फैसला ले लेती है वो एक फैसला हो जाता है। तो इसको किसी और रोज तराजू में हम जरूर तोल के देखेंगे क्या फायदा क्या नुकसान है। लेकिन अभी मुझे बताइए कि अब एक सिक्योरिटी एनालिस्ट होने के नाते, जब इस जंग के बाद की तस्वीर, जबकि धूल उड़ रही है इस मैदान में, जब आप देखते हैं तो मुझे बताइए आप क्या खोया क्या पाया? देखिए, पहली बात तो मैं कहना चाहता हूं, ये जंग नहीं थी, ये क्राइसिस थी। ये जरूरी है, इसको फर्क को आप पहले समझिए। अब हमने क्या खोया है ये देखिए। हमने, पहली बात, मिलिट्री के मायने से हमने अपने इंडियन एयरफोर्स की और कमजोरियां दिखा दी। अब मैं उसका यहां बयान नहीं करना चाहता हूं इस समय, क्योंकि जैसे हमने वहां बालाकोट में दिखाई थी कि हमारी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर बहुत अच्छी नहीं है, यहां हमने बहुत सारी और दिखाई है, पहली बात। दूसरी बात, हमने ये दिखा दिया मिलिट्री टर्म्स में कि हमारी मिलिट्री की प्लानिंग और उससे पहले वॉर एप्रिसिएशन, ये देखना कि हमारा दुश्मन कौन है, हम उसमें भी चूक गए बिल्कुल। इसका मतलब हमारी जो पूरी सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट है उसमें चूक गई। तीसरी बात, अभी इंटरनेशनल कम्युनिटी ने देखा कि साहब वो कह रहे हैं 5 प्लेन उन्होंने गिरा दिए, ये कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। अब आप मुझे बताइए, क्या अमेरिका नहीं सोचेगा? पहली। तीसरी बात कि मैं अगर इसको बना रहा हूं, अमेरिका बना रहा है इंडिया को एज अ मिलिट्री बुलवाक अगेंस्ट चाइना, तो वो सोचेंगे कि क्या इनको बनाना चाहिए। एक बात। नेक्स्ट बात, अगली बात सुनिए, वो जो डोनाल्ड ट्रंप है वो अब ये बोल रहे हैं कि मैं दोनों मुल्कों के साथ ट्रेड करूंगा बराबर का, पाकिस्तान हिंदुस्तान के साथ, और मैं कश्मीर मसले में दोनों की मदद करना चाहता हूं, क्योंकि उनको पाकिस्तानियों ने बोला है कि साहब ये मसला कश्मीर का है। अब हम तो ये अभी तक ये कह रहे थे ना, जब से मोदी सरकार आई है और 2019 से, कि हमारा अटूक अंग है और हमें पीओके लेना है, तो साहब लीजिए ना पीओके, उसके लिए पहले ताकत बनाइए। तो मिलिट्री टर्म्स में आपका लॉस हुआ, प्रेस्टीज का लॉस हुआ, और सबसे बड़ी बात, एक धक्का लगा है हिंदुस्तानियों को।
कि जो एक इमेज बनाई थी कि स्ट्रांग लीडर की, मेरे ख्याल पे अब लोग बोलेंगे नहीं डर के मारे, पर वो इमेज कहाँ रह गई है। और जहां तक आपने बात करी टेलीविजन चैनल, इंफॉर्मेशन वॉर, उन्होंने तो अपना एक सर्कस करी थी जो दुनिया ने देखी और दुनिया हंस रही है उसके ऊपर। देश बिक रहा है, एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, कोल, रेलवे, सारा का सारा बिक रहा है। जानते हो ना ये बात? मीडिया आजकल हिंदुस्तान में क्या कर रहा है? किसका? अदानी का काम। मैं लोकसभा में लड़ रहा हूं, सड़कों पे लड़ रहा हूं, कांग्रेस पार्टी लड़ रही है, मगर मीडिया वाले हमारी मदद नहीं कर रहे हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लड़के जीत के दिखाएंगे आप। लेकिन मैं थक चुका हूं दोस्तों, थक गया हूं झूठ बोलते बोलते, मोदी जी को और सेना को डिफेंड करते करते। लेकिन अब और नहीं, पठानकोट हमला हुआ, मोदी जी और सेना सोए रहे, पुलवामा में खून की नदियां बह गईं, और अब पहलगाम का हमला, और मोदी बिहार में चुनाव की तैयारी में व्यस्त हैं। देश में लाशें गिर रही हैं और यहां नारे, जश्न। ये कैसा राष्ट्रवाद है जहां नेता वोट गिनते हैं और जवान मिट्टी में मिलते हैं? आज से सिर्फ सच बोलूंगा, और सच ये है, हमारी सेना ने आज तक एक भी आतंकवादी जिंदा नहीं पकड़ा, मुर्दा भी नहीं। आतंकी हमला होता है और कुछ दिन बाद मीडिया चुप, सरकार चुप, पता भी नहीं चलता असल में क्या हुआ। पहलगाम के हमले को 9 दिन हो गए, आतंकवादी मिला नहीं। कहां गया? जमीन निगल गई या आसमान 1 घंटे में गायब हो गया। और हर बार पाकिस्तान पर इल्जाम। जंग की बात करते हो भाई, ट्राई तो किया था, याद है ना? अभिनंदन का हाल देखा, पाकिस्तान ने वापस भेजा, वो भी कपड़े पहनाकर। चाहता तो नंगा भेजता, लेकिन उन्होंने इज्जत रखी और हम उसे नेशनल हीरो बना दिया, जैसे कोई दुश्मन को हरा कर आया हो। पाकिस्तान से जंग करोगे कैसे? हमारी इस डरपोक सेना से, जिन्हें सीमा हैदर जैसी औरत उल्लू बनाकर बच्चों समेत भारत में घुस गई। पहले अपने घर को संभालो। देश टूट रहा है, मणिपुर जल रहा है, नागालैंड अलग देश की बात करता है, तमिलनाडु, पंजाब, कश्मीर सब थक चुके हैं, अलग होना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि इस देश में सच बोलने की गुंजाइश नहीं बची। श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव और बांग्लादेश, आज भारत के रिश्ते लगभग हर पड़ोसी देश से बिगड़ चुके हैं। भारत जब युद्ध जैसी स्थितियों का सामना कर रहा था, तब भारत का कोई देश समर्थन करने नहीं आया, जबकि पाकिस्तान के पक्ष में तुर्की, अजरबैजान, चीन ने खुलकर समर्थन दिया। क्या यही है भारत की फॉरेन डिप्लोमेसी, जिसमें लाल आंखें दिखाकर अपने ही देश में भौकाल मचाया जाता है? क्योंकि पिछले 4 दिन के अंदर हम देख चुके हैं कि जितने खतरनाक हालात देश के अंदर है, उससे कहीं ज्यादा बुरे हालात तो भारत की फॉरेन डिप्लोमेसी के हो चुके हैं। हम अपनी शर्तों पर एक सीज फायर तक नहीं करवा सके, जबकि पाकिस्तान ने दिल्ली से सटे सिरसा तक मिसाइल फेंक दी और दिल्ली को सीधा चुनौती दे दी। इतना मजबूर तो भारत कभी नहीं था। कहने को तो हम 5वीं अर्थव्यवस्था है, लेकिन कोई भी बैंक करप्ट दिवालिया देश आकर हमारी सीमा के अंदर आतंकी हमला कर जाता है, और हम आज भी आतंकियों के स्केच लेकर घूम रहे हैं। सीज फायर में एक शर्त तक नहीं रख पाए कि पाकिस्तान भविष्य में कोई आतंकी हमला नहीं करेगा। ये कौन सा विश्वगुरु भारत है? I am just going to go ahead and give you some current things on there, so that all that life which has been created about the Indo-Pakistan war and the Indus, the treaty, which was a tripartite, which was between 3 parties, the World Bank, India and Pakistan, and India, as usual, is holding that in abeyance, and they always are looking for something to subdue or put it the other way, punish the weaker neighbors. They've done that with Nepal, with landlocked country, and they've done that with Sri Lanka, they've done that with Bangladesh, and they have done that with the chicken neck 7 states, and they've been continuously doing that. And for the last 75 years, there is not a single
I think, barbaric act or atrocity which they have not inflicted upon the occupied part of the Kashmir in the valley. And this is where, in the tourist spot, the Pahalgam, where it occurred, and you can see the extent of cruelty and how these people are doing. Their own veteran says that this was all decided by these people. The ex-army chief who was fired because he exposed the Narendra Modi flag false operation, and he was asked to leave the Indian services. यूनिवर्सल टेलीविजन को सब्सक्राइब करना ना भूलें, उसके बाद बेल बटन पे क्लिक करें और अपने कमेंट्स के सेक्शन में अपने कीमती जो ख्यालात का इजहार ज़रूर